Yes, students, I hope you got about the algae. Now, the second group of kingdom Plantae is bryophytes. Here, there are two words. One we can say bryo, and second we can say phyte. This phyta word mean for plant, and this bryo word denote the moss, or we can say a simplest type of, or we can say soft plant. And these bryophyte also known as amphibians of plant kingdom. It include various liverworts and mosses. It include mainly two groups. One is of liverwort and second is of mosses. We have to discuss these two groups in detail. They commonly grow in, we can say, damp, humid and sandy area of hills mainly. So why they are known as amphibians? If you remember, the amphibians, that means is the class of, we can say, vertebrata. So amphibian, that means if you talk about frog, then frog require water as well as land. वो land पर रहता है, water किसके लिए जरूरी है? उसके लिए sexual reproduction के लिए. Same here, that means they can live in soil. That means these plants can live in soil, but they are dependent on water for sexual reproduction. That means we can say they are dependent on water for sexual reproduction. If we talk about his body, that means little bit more differentiated as compared to algae and less as compared to next group. So body is more differentiated as compared to algae. So that means the same. There is a thallus-like and prostrate or erect body hai, and we can say attached to substratum. That means this is the substratum, or we can say the soil. This is attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoid, and these rhizoid, that means they may be unicellular or they may be multicellular. तो जो सबस्ट्रेटम से साथ जुड़ के रहता है पार्ट, वो जनरली कौन सा होता है? रूट. एंड हियर वी कैन से कि these rhizoids are actually root like structure. Okay, and there may be a axis like structure which acts as like stem, and maybe leaf like structures are there, but there is no true root, leaf and stem. So there are root like, leaf like and stem like structures are there. So we can say what is little bit more differentiate, but like true, but there may be root like, leaf like or stem like structures present हो सकती है. Okay, now here the main plant body is a haploid, and in this body gametes are produced, and this is known as gametophyte body. Is known as gametophyte body. Okay, now see, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड. मेन प्लांट बॉडी है, दैट मीन्स कोई नॉन मेन प्लांट बॉडी भी होगी. तो दैट मीन्स मे बी देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज. देन हियर दिस इज हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मीन्स n, दैट मीन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन्स वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड प्रोड्यूस गैमेट. अगर हैप्लॉइड है तो दैट मीन्स कोई डिप्लॉइड भी होगा. अगर यहाँ पर प्रोड्यूस गैमेट कर रही है तो कोई दूसरी बॉडी फिर क्या करेगी? एंड दिस इज नोन एज गैमेटोफिटिक बॉडी या गैमेटोफाइट बॉडी. तो फिर कोई दूसरी बॉडी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? नाउ कम टू दैट पॉइंट. नाउ सी, if you talk about algae, then there is a different kind of life cycle. In angiosperm there is different kind of life cycle. In bryophyte there is different kind of life cycle. First talk about different kinds of plants. In all plant kingdom, that means whole group, there may be two type of plant. One is known as gametophyte plant and other is known as sporophyte plant. This gametophyte plant होता है, ये हैप्लॉइड होता है, और वी कैन से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. एंड दिस स्पोरोफाइट ये होता है डिप्लॉइड, और वी कैन से 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है. तो ये जो गैमेटोफाइट होता है, दिस गैमेटोफाइट है, दे फॉर्म द gametes, and here sporophyte plant, they form the spores. We can say they form the
asexual spores, but not in all plants। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास दो तरह के प्लांट हो गए, एक दैट इज गेमेटोफाइट प्लांट, अदर इज स्पोरोफाइट प्लांट। दिस गेमेटोफाइट इज हैप्लॉइड एंड दिस इज डिप्लॉइड। नाउ if we talk about life cycle, there are three different types of life cycle. One is known as haplontic life cycle, other is known as haplodiplontic life cycle, and other is known as a डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब नाम से ही पता चल रहा है, कोरिलेट करो, इफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दैट मीन लाइफ साइकिल में सिर्फ किस तरह का प्लांट होगा, गेमेटोफिट टाइप का। तो हियर प्लांट कौन सा होगा, ओनली गेमेटोफिटिक टाइप का। इफ यू टॉक अबाउट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दैट मीन हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी है, तो इसमें कौन सा होगा, गेमेटोफिटिक एज वेल एज स्पोरोफिटिक। इफ यू टॉक अबाउट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो इसमें मेनली प्लांट कौन सा होगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस गेमेटोफिटिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और दिस टाइप ऑफ डिफरेंट लाइफ साइकिल। तो उसके लिए हमें पूरा लाइफ साइकिल देखना पड़ेगा। नाउ कम वेरी फर्स्ट टू द लाइफ साइकिल ऑफ एलजी। ये आया समझना, गेमेटोफिटिक बॉडी हैप्लॉइड होती है एंड उस पे क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, इससे नाम क्या है, गेमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक बॉडी डिप्लॉइड होती है 2n, उस पे क्या बनते हैं, स्पोर्स, और वी कैन से एसेक्सुअल स्ट्रक्चर। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक में सिर्फ सेप्रोफिटिक स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, इसमें गेमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक दोनों, और इसमें सिर्फ गेमेटोफिटिक बॉडी होती है। नाउ कम टू लाइफ साइकिल ऑफ algae. Now, if you remember in fungi, we have studied that in zygote there is meiosis takes place in zygote and form the spore. The same process is here in this algae. If you talk about life cycle, अब देखो, देयर इज ए मियोसिस। अब यहां पर ये जो जाइगोट था ये 2n था, तो मियोसिस होने के बाद ये बना स्पोर, और ये स्पोर हो गया n। दैट मीन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर थ्रू मियोसिस, एंड दिस स्पोर डेवलप इनटू ए बॉडी दैट इज नोन एज gametophyte, that is known as gametophyte. If the spore is n, तो ये gametophyte भी क्या होगा, n होगा। Now on this gametophyte body, ये जो मेन बॉडी है, we can say body of algae. In this gametophyte body, gamete will form. अब gamete कहाँ बनेंगे, gamete बनेंगे उस ऑर्गन में जहां पर gamete प्रोड्यूस होते हैं, that means सेक्स ऑर्गन में। तो there are two type of sex organ. One is known as oogonium and second is known as antheridium. This oogonium is, we can say, female sex organ, and this is the male sex organ. तो कंसिडर करो, इससे क्या बनेगा, ओवम या एग बनेगा, इससे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। दोनों के दोनों जो फ्यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो वापिस क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। नाउ सी दैट हियर देयर इज ओनली प्लांट बॉडी दैट इज नोन एज ए गेमेटोफाइट बॉडी, एंड दिस गेमेटोफाइट इज n,
और इस पे क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। तो यहाँ पर इनमें क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ ए गैमेट। तो ये जो लाइफ साइकिल है, दिस लाइफ साइकिल इज नोन एज ए हैप्लॉन्टिक लाइफ cycle. Is clear or not? With very few exception, in all algae there is such type of haplontic life cycle. तो इसमें सिर्फ एक ही बॉडी है, that is gametophytic, तो वही बॉडी रहेगी मेन बॉडी, and it produce the male and female sex organ. There is a formation of ovum and sperm, fertilization होगा, zygote बनेगा, zygote में meiosis होगी, spores बनेंगे, एसेक्सुअल स्पोर से वापस ये बॉडी बनेगी और इसे फिर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों साइकिल चलेंगे विद इन दिस बॉडी। इज क्लियर और नॉट? नाउ कम टू द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस, फिर उसके बाद उसकी डिटेल करेंगे। नाउ कम टू लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। इन ब्रायोफाइट देयर इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब देखो क्या होगा, इफ यू टॉक अबाउट ब्रायोफाइट्स, देन द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेल्यूलर है, एंड एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्किगोनियम इज नोन एज फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम में बनता है एंथीरोजोइड और वी कैन से स्पर्म, एंड दिस इज बाई फ्लैजिलेटेड। दिस इज जनरली बाई फ्लैजिलेटेड। इफ यू टॉक अबाउट आर्किगोनियम, तो आर्किगोनियम फ्लास्क शेप्ड होता है, एंड दिस फॉर्म ए एग दैट इज सिंगल एग। एग मोस्ट ऑफ केसेस में सिंगल ही बनता है, और जो स्पर्म होता है मोस्ट ऑफ केसेस में फ्लैजिलेटेड होगा या मूवमेंट करने वाला होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलर है, एंथ्रीडियम एंथीरोजोइड, आर्किगोनियम में क्या बनेगा, एग बनेगा। नाउ कम टू द साइकिल, हाउ द साइकिल टेक प्लेस। सो ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल इज ए हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। अब कैसे होगा, अगेन स्टार्ट फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट था, जाइगोट क्या था हमारा, 2n। इन केस ऑफ फंजाई यहां पर क्या हुआ, इन केस ऑफ फंजाई एंड एल्गी यहां पर क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, बट इन दिस केस दिस जाइगोट विल डेवलप एंड फॉर्म ए अनदर प्लांट बॉडी दैट इज नोन एज स्पोरो। फाइट। अब ये 2n है तो ये भी क्या होगा, 2n यानी कि डिप्लॉयड होगा, तो दिस वुड बिकम डिप्लॉयड। अब इस स्पोरोफाइट में इसी के ऊपर एक स्ट्रक्चर होगा, वी कैन से स्पोरेंजिया, तो वो भी क्या होगा, 2n होगा, बट हियर इन स्पोरेंजिया मियोसिस वुड टेक्स प्लेस। तो मियोसिस होगा तो इसे फिर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, एंड दी स्पोर वुड बी हैप्लॉइड। देन आफ्टर गेटिंग सुटेबल कंडीशन, दी स्पोर विल germinate and they will form another body that is known as gametophyte। तो अब ये स्पोर n है, तो ये गेमेटोफाइट बॉडी भी क्या होगी, n होगी यानी कि हैप्लॉइड होगी। ये बॉडी कैसी थी, डिप्लॉइड थी। नाउ वी हैव सीन अर्लियर दैट इन गेमेटोफिटिक बॉडी देयर आर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज एंथ्रीडियम एंड एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। तो ये एंथ्रीडियम क्या हो गया, इसका मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। एंथ्रीडियम में क्या बनेगा, एंथीरोजॉइड्स, और इस पे क्या बनेगा, ओवम और
they both get fertilized. This process also known as syngamy, or we can say fertilization, and again they form a diploid zygote. तो ये गैमेटोफाइट N था, तो ये एंथ्रेडियम का पूरा स्ट्रक्चर N होगा, ये भी N होगा, ये भी N होगा, ये भी क्या होगा N, and form the 2N structure. Now see here, these structures are, we can say, haploid, and these structures are diploid, and there is a formation of two different bodies. एक बॉडी कैसी बनी, ये स्पोरोफाइट बनी, एक बॉडी कैसी बनी, ये गेमेटोफाइट बनी. तो ये जो लाइफ साइकिल आया है जिसमें हैप्लोटिक फेज भी हो और डिप्लॉन्टिक फेज भी हो, such type of life cycle is known as haplodiploidic life cycle. Is known as haplodiploidic life cycle. ये फेज मिसिंग था किसमें, एल्गी में, तो वहां पर स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी थी ही नहीं, तो लाइफ साइकिल कौन सा था, ओनली हैप्लोइडिक. सो हियर लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल. नाउ इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, this gametophyte body is a dominant, or we can say main plant body. We can say main plant body. Okay, why this is main plant body? Because this sporophyte body is a live on and dependent on gametophyte. इज क्लियर और नॉट? तो ये हमारी डोमिनेंट या मेन प्लांट बॉडी नहीं होगी. मेन प्लांट बॉडी इज ए गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी. ओके, इफ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सी हियर, दिस इज द गेमेटोफाइट बॉडी एंड दिस इज द स्पोरोफाइट बॉडी. ओके, दैट मीन दिस स्पोरोफाइट बॉडी इस गेमेटोफाइट पे रहती है. सो I hope you got this. Now we have to discuss detail about the liverwort and moss. Okay, so this is about the life cycle of a ब्रायोफाइट. तो हमने दो लाइफ साइकिल पढ़ लिए. हैप्लोटिक वो एल्गी में था, और ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक दैट इज इन ब्रायोफाइट. टेरिडोफाइट में थोड़ा सा अलग है, ऐसा ही है. देन इन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कैसा है, डिप्लॉन्टिक है, वो हम आगे पढ़ेंगे. इज क्लियर और नॉट? ओके ना?